आज 3 नवंबर और रविवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਸੌਮੀ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 5:42 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸੌਮੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੌਮੀ ਆਂਟੀ, ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅੜਚਨਾ ਨੇ, ਜੋ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਖਟਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣ ਬੋਲਣ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਟਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਦਮਾਦ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਖਟਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਮਕਾਨ ਲੱਭੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਟਕਣ ਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करें। मैं सारे अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमारे से जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ करें। मेरा आज का एक छोटा सा शुक्राना है। मैं सुबह गुरुजी के स्वरूप के आगे रोज़ चाय रखती हूँ। आज मैंने चाय रखी और 5-7 मिनट के बाद मैं जब चाय लेने गई तो मेरे ऊपर चाय का गर्म कप गिर गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, वे हमारी बहुत सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सारे जीव जंतु जानवर सभी की रक्षा करना। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर कोटि कोटि महादेव। शुक्राना गुरु जी। जय मैं गुरु गुरु जी की जी। प्यारी बेटी अपना 28 नवंबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सुम्मा आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरा सत्संग आगे अपलोड करते हैं। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है और शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का आज शुक्राना है। और मतलब कि हर क्षण का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए शुक्राना है। और हमें नया जीवन दिया उसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आज मॉर्निंग में दीपा आंटी का सत्संग आया था
कि ये सत्संग सुनना है और तुझे एक उपाय करना है जिससे तेरे जीवन की जो भी परेशानी है, जो बड़ी से बड़ी परेशानी, दिक्कत है, वो सब दूर हो जाएगी। तो उस सत्संग में दीपा आंटी ने बताया था, उपाय बताया था कि जो भी मतलब कि आपकी अलमीरा में सबसे नीचे वाला जो कपड़ा दबा हुआ है, जहाँ आप लोग कपड़े रखते हैं, जो सबसे नीचे का कपड़ा दबा है उसको निकालना है। उस पर राइट हैंड साइड की जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली है उससे ओम बनाना है और उसको सबसे ऊपर रख देना है। और उसको ये आप अगले दिन या जिस दिन भी पहनना चाहो उस दिन पहन लेना और फिर उसको रख देना हैगा। तो गुरुजी महाराज का जो मतलब कि दीपा आंटी ने जो उपाय बताया था वो मैंने किया। तो उनका सत्संग सुनने के थोड़े दिन समय बाद ही मैंने किया। तो जो हमारी हम कुल देवी पूजा करते तो उसकी हमने साड़ियाँ अलग रख रखी थी, तो वही साड़ी मेरी सबसे नीचे दबी हुई थी, क्योंकि मेरी वो साड़ी पुरानी हो गई थी तो मैं नई साड़ी लेके आ गई थी बहुत समय पहले। तो वो साड़ी कितने सालों से, तकरीबन 5-6 सालों से वो साड़ी ऐसी की ऐसी रखी हुई थी। उसे मैंने बस पॉलीथीन से, ना तो कभी मैंने उसे बाहर निकाला और ना ही उसको यूज़ करा। बस जब भी मैं बैग जमाती तो वो थैली को निकाल के बैग जमाती, वापस उसे उसी जगह रख देती। तो फिर जब आज मैंने निकाला और उसे खोला तो उसमें वैभव लक्ष्मी की एक बुक रखी हुई थी। तो मैं शॉक हो गई कि जब भी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया है कि जो तेरी परेशानी है वो दूर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो वैभव लक्ष्मी की बुक थी वो मेरी पूजा वाली साड़ी के साथ मैंने रख दी थी। संगत जी, इतनी बड़ी गलती मैंने करी और मतलब कितने सालों से वो साड़ी मैंने खोली तक नहीं, और वो वैभव लक्ष्मी की बुक उसी में रखी थी। और आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी महाराज ने माता लक्ष्मी को उस जगह से वहाँ पर बाहर निकाला। इसके लिए मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ कि हमें किसी चीज़ का पता भी नहीं होता, हम खुद उन चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं। और गुरुजी महाराज कैसे हमारी एक एक चीज़ों का ध्यान रखते कि इन चीज़ों से तुझे परेशानी आ रही है। और 2 महीने पहले गुरुजी महाराज, दीपावली के पहले गुरुजी महाराज ने मुझे हमारे घर में जो सालों पुराना 12 साल पुराना नारियल रखा हुआ था वो ढूंढवा के गुरुजी महाराज ने घर से बाहर निकलवाया। और आज 6-7 साल पुरानी साड़ी में दबी हुई वैभव लक्ष्मी की बुक को बाहर निकलवाया। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ कि कितने मतलब कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं थे तो हम कैसे कैसे गलतियाँ कर देते हैं कि पूजा की साड़ी में मैंने वैभव लक्ष्मी की बुक रख दी और उसे मैंने देखा तक नहीं और मैं भूल भी गई। अगर गुरुजी महाराज मुझे ये नहीं बताते तो वो तो सालों साल रखी रहती। तो शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। इतनी बड़ी भूल को सुधारने के लिए शुक्राना है और इस संकट से बचाने के लिए शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। सबको अपनी चढ़ती कला में रखिए, सबको चढ़ती कला का आशीर्वाद दीजिए, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जो आपका इतना अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी आप अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखिए। उन्हें भी खूब धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए और जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य धन है अच्छी सेहत दीजिए, प्यारी संगत को अच्छी सेहत दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की शुक्राना फतेह। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप सदा सदा के लिए ही सहाय रहिएगा प्लीज मेरे बाबा। बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से आज 38 नवंबर को 2025 1709 मतलब 1709 में पूरा चार्ज में आपसे समक्ष गाड़ी में बैठ के बाबा आपके संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष पेश कर रही हूँ गुरु जी, मतलब साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा, जो हमारे मन में आता बरोबर है उसको आप तुरंत के तुरंत पूरा कर देते हैं।
आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, आज सुबह तो मैं आपको बोला ही अमृत वेले में मैंने कि बाबा पंचवानियाँ सुन के मैं सोऊंगी, मैं सोई नहीं हूँ गुरु। और पता नहीं गुरु जी क्या ही तो हो रहा है, या तो ठंड से हो रहा है या कुछ जैसे कि माथा सर के अंदर कुछ शेक कर रहा है, कोई छाती चेस्ट का झड़कन जैसे बढ़ जा रहा है, कांप रहा है बदन। तो ठंड के लिए लग रहा है बाबा या कमजोरी के लिए लग रहा है। खाना पीना बाबा कुछ भी ऐसा नहीं है। ब्रेड खाया था, कोई पानी फल को हम लोग भून के मतलब सादा तेल में ही भूज के खाते हैं नमक मिर्च दे के बाबा। अब मैंने कब के कचौड़ी उचौड़ी खाना छोड़ दिया है गुरु जी। आता भी है तो आपको नाश्ता में जब लगता है तो उसमें से एक आधा ही पीस लेती हूँ, बाकी हस्बैंड और बच्चे खाते हैं। गुरु जी आज थोड़ा देरी हो गया था बाबा, कि 3 दिन से बच्चा मुझे डरका रहा था कि पढ़ूंगा पढ़ूंगा। आज जब मैंने डंडा लेके बैठी हूँ कि अब पढ़ो नहीं तो पिटाई कर दूंगी, तब बाबा उसने पढ़ा। हमने थोड़ा तो लिख लो, लिखने वाले ही प्रॉब्लम तुमको ज़्यादा है, याद तो तुमको तुरंत हो जाता है। बाबा आपके कृपा से उसने लिखाई भी की, दोनों मैथ्स और इंग्लिश का कुछ भी लिखा, बावल साउंड कॉन्सोनेंट और नंबर्स। तो बाबा कुछ तो किया उसने, 3 दिनों से कुछ ही नहीं किया था बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। आप भी आहिस्ता आहिस्ता उसके वो सोच ही देंगे कि हाँ पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो बाबा बहुत बहुत सपने देखता है, ये गाड़ी खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और बच्चा है जो भी दिमाग में आता है वही बोलते रहता है। मैंने बस नहीं, मैं इतना ही बोलती हूँ, ये सब करने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए बहुत बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, तब ये सब चीज़ अपने आप गुरु जी तुमको देंगे। हर बात पे बाबा वो भी सीख गया है। मेरे को गुरु जी बोले हैं, मैं गुरु जी का बेटा हूँ, ये सब बाबा बोलते रहते हैं। आपका अनंतम शुक्राना। अपनी माँ को भी धमकी देता है, मैं चला जाऊंगा गुरु जी के पास, जाके बड़े दिन में चला जाऊंगा कि तुम मेरे को बुलाना। बाबा बच्चे के मुंह से क्या निकले, कोई सिखाता तो है नहीं आजकल के बच्चे को। बाबा हम नाश्ता ही कर रहे थे, खाना खा रहे थे बाबा, मुझे याद नहीं ठीक से। तब तक बड़े बेटे का फोन थोड़ा देर से ही आया बाबा। मैंने कहा बेटा कहीं कुछ शिफ्ट कर रहे हो या बेटा तुम कहीं शिफ्ट कर रहे हो या कुछ? बोले नहीं माँ, वो जो फ्लैट देखा था जो शहर के अंदर है वो काफ़ी छोटा है माँ, कुछ भी नहीं हटेगा, यहाँ तक कि फ्रिज वॉशिंग मशीन ये तब की रखने के लिए मेरे को असुविधा हो जाएगा। बोले नहीं, तब और कुछ ऑप्शन देखो जो दूर है तो उसको एकदम ही छोड़ दो, क्योंकि उतना दूर रोज ट्रैवल करना खेला नहीं है, खेल का बात नहीं है बेटा। उस समय का बात अलग था कि तुम बहुत परेशानी में उस चीज़ को किए थे। तो उसने कहा हाँ माँ यही। मैं बाबा में खाना ही खा रही थी और गुरुजी वो नहाते वक्त मैंने बाथरूम साफ किया, थोड़ा वो बाथरूम का रैक वगैरह सब साफ करी हूँ। उसके बाद नहाने गई हूँ गुरुजी। तो और उसके उसी समय फिर से वही उल्टी वाला टेंडेंसी था, उल्टी भी थोड़ा हुआ। उसके बाद बाबा बॉडी कांप रहा था, पता नहीं क्या हुआ है गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर भी जैसे लग रहा है अंदर कुछ हिल रहा है। मैं आके एकदम परास्त बैठ गई। तो पार्टी बोली दीदी मालिश कर दूँ? बोला हाँ कर दे। वो खुद ही बोल रही है चेहरा तुम्हारा बहुत बैठ गया, कैसे खराब लग रहा है। अरे पता नहीं कल से क्या हो रहा है, उल्टी भी हो रहा है और जैसे वर्टिगो का प्रॉब्लम है क्या पता। इतना अभी हम ट्रैवल किए हैं, बहुत दिनों बाद किए हैं, हो सकता है उसके वजह से कुछ स्पॉन्डिलाइटिस का कुछ प्रॉब्लम उठ गया है या कुछ बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे खुद ही बाबा, तो मैं कैसे बताऊँ।
तो उसने मसाज किया। हस्बैंड ने फिर से वही सर घूमने वाला दवा दिया तो बाबा थोड़ा स्टेबल हुई। बच्चे ने फ़ोन किया कि बस माँ यही हम लंच करके फिर से घर देखने के लिए जाएंगे। मैंने कहा बेटा दिसंबर में जब तुम आओगे तभी बाबा का आदेश लेके मैं सत्संग करवाऊंगी यहाँ घर में, तुम भी शामिल लेना। तो उसने कहा मैं अपने फ्रेंड को भी लेके आऊँगा। बोला आना, जहाँ भी रहना है, यहाँ घर है वहाँ फ्लैट है। बाबा मैंने इसलिए कहा कि हमारे सोचने भर क्या है और हमारे सोचने भर क्या है, अब वो काम आप पूरा करा देते हैं गुरु जी। मैंने कल वही पेंटर बेटा को फ़ोन किया कि तू एक बार आके गुल्लू का जो अलमीरा है बाबा, उसका 3 पार्टिंग वाला अलमीरा है लकड़ी का। उसने कहा मुझे उसके अंदर के कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, वो सब डिस्कार्ड कर दो, बेच दो या जो भी कर। तो अब वही करूँगी, जो बेचने लायक है बेचूँगी या कुछ ऐसे दूँगी। उसका जो बाबा 6XL 5XL का कपड़ा कैसे ही किसी को होगा। तो वो सब रखा है जमा के। तो ऐसे ऐसे एक चीज़ को हाथ देंगे, जो इम्पोर्टेंट काम था वो सब तो बाबा को ही गया लगता है। बाबा मेरे पेंटर ने आया, आके वो अलमीरा को टच वुड किया, वो टच वुड वाला पॉलिश होता है उसे पॉलिश किया बाबा, वो एकदम अलमीरा न्यू के न्यू हो गया। और बाबा वो पलंग मेरा बेटा जिसमें सोता था उसको वो डिस्कार्ड करना चाह रहा था बाबा। उसने कहा माँ उसको उठा के फेंकना, मेरे को वो नहीं चाहिए। तो बाबा मेरे मन में एक बात जरूर था कि मेरी सासू माता कम से कम 6 महीना उस बेड पे पड़ी रही बाबा। मैंने मानती हूँ बाबा मैट्रेस मैंने चेंज कर दिया था, बिस्तर को मैंने पलंग को अच्छे से पॉलिश और मेटल कास्ट आयरन मेटल का था बाबा, तो मैंने पॉलिश वगैरह सब कुछ करा दिया था। पर गुरुजी आप कुछ गलत मत सोचिएगा बाबा। जैसे कि मेरे बेटे ने कहा कि वहाँ दादी ने एक बार फ़ोन करवाया था बुआ से और मैंने कहा दादी मैं थोड़ी देर में करता हूँ बाबा। वो फिर उसके दिमाग से उतर गया, उसने और नहीं कहा। उसके बाद फिर जब मेरा खबर गया कि हाँ दादी इज़ नो मोर, तो बाबा उसको बहुत पछतावा हुआ और उसके मतलब रुलाई भी आया कि एक बार वो मिलना चाह रही थी, मैं मिल नहीं पाया। तो वो उसी पलंग पे थी, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चा उस पलंग पे सोए। मेरा रीज़न कुछ और है, उसका रीज़न कुछ और है। वो नहीं चाहता कि कोई भी याद उसको परेशान करे। तो बाबा तुरंत निताई के मतलब पेंटर बेटे को बोला कि जो मैंने उस ग्रीन पार्क के फ्लैट में अलमीरा दिया था वो क्या खाट पलंग भी बेचता है? बोला हाँ भाभी बेचता है। और मेरे ऑनलाइन से बहुत अच्छा क्वालिटी का चीज़ तुरंत के तुरंत 1 घंटे में आ भी गया, फिक्स भी हो गया और आपकी कृपा से पेमेंट भी हो गया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। आज आपको कुछ सेवा लेना था, मेरे हिसाब से तो बाबा मैंने सेवा किया। मैंने उसको बोला है यदि तूने खरीद के उसको मेरे को दिखाया नहीं तो मैं तेरा पिटाई करूँगी। और उसने कहा कि भाभी मेरे को चादर दो, ठंड में चादर मतलब मेरे को कंबल नहीं। बोलता है तू इतना बड़ा फ्लैट में रहता है और तेरे को कंबल ओढ़ने का नहीं है, तू एकदम कंजूस हो गया। बोला नहीं भाभी, धो के सुखाने के लिए रखा था, छत से किसने गायब कर दिया। और वो सब एरिया है ही ऐसा, मतलब थोड़ा निम्न जो भी ये सब क्लास के लोग रहते हैं, तो ये सब में झगड़ा जोड़ी में होता ही है ये सब चीज़ कि हम आपसे हिंसा कर रहे हैं तो आपका सामान गायब कर दे या कुछ कर दे, ऐसा वाला बात बाबा। बाबा मेरे बाबा मेरे फिर यही हुआ गुरु जी। उसने कहा नहीं भाभी अब मैं कंफर्टर खरीदूंगा। बोले कंफर्टर तो क्या 200-300 में मिलेगा क्या? बोला हाँ हाट में मिल जाएगा बाबा। ये हमारे यहाँ हमारे मायके के एरिया की तरफ वो जो होलसेल थोक खुद बाजार लगता है, फुटपाथ पे सब बिक्री करते हैं, फिर वहाँ से सब शॉप में ले जाते हैं तो वो दाम बढ़ जाता है। तो गुरु जी उसने कहा
कम से कम 300 350 लगेगा। अजय बोला ठीक है तेरे को मैं दूंगी, लेकिन मेरे को एकदम सील पैक किया हुआ उसका पिक्चर भेजेगा तो ही मैं मानूंगी कि तूने खरीदा है। बोला हाँ एकदम जरूर से। और इतना चंट है। उसके बाद चालू हुआ उसका, ये चादर दे दो भाभी, वो चादर दे दो। मैं तू 1 साल में कितना चादर मेरे से लेके जाएगा फिर? हाँ, मैं क्या रोज रोज चादर खरीदती हूँ? वो मेरे बेड कवर उतारा हुआ रखा हुआ था कि कल मेरा धोवा जो आता है उसको मैं देती हूँ, हम लोग धोने के लिए देते हैं। उसने अच्छा वाला बेड कवर उठा के ये ले जाऊँ, बोले थप्पड़ खाएगा। बवाल में अलमीरा से मैंने निकाल के उसको दिया, मस्टर्ड कलर का बेड कवर ही। हम देख ले ये हैंडलूम का है और ये मजबूत है। हमको बहाना मत बनाना कि जो भी चादर होता है थोड़ा सा वही खराब हो जाता है। हम लोग तो धोते नहीं है, जो चादर वगैरह रहता है वो धोगा ही धोता है। तो अब दोनों चीज वो ले गया, आपने ये सेवा मेरे से लिया। अब वो तो कंफर्टर खरीद के बाबा पहनेगा, अपने ओढ़ेगा या क्या करेगा, वो तो दिखाएगा ही बाबा मेरे को। नहीं दिखाएगा तो वो जानता है मैं उसका जान खा जाऊं। ये सेवा लेने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। अकेले नहीं बेचारे, आज संडे था, आउट ऑफ द वे जाके बाबा उसने वैन अरेंज करवाया, जहाँ से उसको पलंग उठाना था वो उठाया। और पहले बाबा कास्ट आयरन का था, अब स्टील बॉडी का पलंग आ गया है। मैट्रेस तो मेरा बाबा ब्रांड न्यू रखा हुआ था, क्योंकि सासू वहाँ जब थी तो उसमें उल्टी पॉटी सुसु सभी करी थी उन्होंने, जो उसका उसका लिया हुआ था मेरे बेटे का। तो बाबा उनके जाते ही मैंने तुरंत के तुरंत वो सब चीज़ फेंकवा दिया था, कुछ भी नहीं रखा था गुरुजी। तो मुझे तो उसके एवज में देना ही पड़ता। तो बाबा मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना है कि अलमारी का भी पॉलिश हो गया और नया बेड भी लग गया है बाबा। बेटे का कहना है कि मैं ऐसे समय पे आऊँगा माँ कि क्रिसमस न्यू ईयर यहीं पर मना के जाऊँगा दोस्त के साथ। तो तुम्हारी मर्जी, फ्लैट भी है, घर भी है तुम्हारा, वो जहाँ रहना है तुम रहो। नहीं, घर में ही रहूँगा, सबके साथ रहूँगा माँ। मैं ठीक है, तुम आओगे तभी सत्संग करवाएंगे। बाबा को बोलूँगी कि बाबा ऐसे ही डेट दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अब दोपहर को भी सो नहीं पा रही हूँ, जिससे लग रहा है कि दिमाग चल रहा है, कुछ तो कुछ दिमाग में होता जा रहा है, कुछ कुछ चिंता लग रहा है गुरुजी। मैं सब समय क्या बेटी के सामने मुंह खोलूंगी कि बाबू ये पैसा नहीं है, ये काम नहीं है, वो नहीं है, तो मेरे को दे दे। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे गवारा नहीं है ये सब चीज़। इसलिए बाबा आपसे यही प्रार्थना है, जय बालाजी महाराज। तो आपसे यही प्रार्थना है कि बस इनके काम में बरकत दीजिए बाबा। कल आपका स्वरूप आ गया है, कल ही आया है, आपके गद्दी पे रखा हुआ है बाबा। अब कल जब वो जाएंगे हमारे हस्बैंड, तब वो दुकान पे रैक पे रखेंगे सामने, ताकि आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग से इनके काम में बरकत हो गुरु जी। क्योंकि बाबा कभी हमने आज तक के गुल्लू से कुछ मांगा नहीं, उसी ने हम लोग से लिया है। अब उसके सामने मुंह खोलना अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। मैं मानती हूँ कोई चीज़ से हिचकेगा नहीं अब। और एक शुक्राना है गुरु जी कि सच में वो बड़ा हो गया है, दिमाग से सोझी से भी बड़ा हो गया है गुरु जी। बाबा मेरे वो लोग दिसंबर और न्यू ईयर जब वो हस्बैंड वाइफ थे दोनों, मतलब जो वो मैसेज उसकी थी वहाँ पर, तो उन्होंने फिर से फुकरेट जाने का प्रोग्राम बनाया था। वो जाती थी बाबा ज़्यादा करके वही न्यू ईयर में ड्रिंक कर करके अय्यासी करने के लिए। और ये बेचारा एक आध ड्रिंक लेके अपना चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि उनको गवारा नहीं था कि इतना मोटा पति के साथ वो डांस करेंगी या कुछ। वो किसी के साथ भी डांस करती थी, बेटा मेरा बैठा रहता था बाबा। तो गुरु जी मेरे वहाँ पर उसने अच्छा खासा एक अमाउंट होटल में पे किया था, पर उसका जाने का मन नहीं है गुरु जी। वो सोच रहा है कि वो यहीं पर अपना मनाएगा, जो भी कोलकाता में आके ही सेलिब्रेट करेगा। तो उसने कहा कि माँ
भाई तो गया हुआ है, मतलब मेरी बहन का लड़का बाबा, जिसके घर आपने बहू ब्लेस किया, कि भाई तो वहाँ गया है फुकेट। तो क्या वो मैं उसको बोलूँ कि वहाँ जाके जो वो लोग जितना भी पैसा बाबा 3,000 हाट के करीब वो लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो वो रिटर्न जब कर ही रहे हैं तो क्यों फेंक के रखूँ? तो उसको मैं ले लूँ और मैंने वो ले लेगा, और मेरी तरफ से वो लोग के लिए हमारी तरफ से उसको एनिवर्सरी गिफ्ट रहेगा, जो पैसा होटल वापस करेगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कि मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, पर तुमको सबसे पहले बड़ी मासी के साथ बात करना होगा कि वो नन्हे को बोल के ये काम करवाए, क्योंकि मेरा बोलना सही रहेगा बेटा। तो ये फिर एक मैसेज आने से ये फिर अटक जा रहा है। एयरटेल वालों की तो भूख ही खत्म नहीं होती गुरु जी। अभी 14 दिसंबर आने में देर है, अभी से ही बिल का ये आने लग गया। बाबा मैंने कहा कि बड़ी मासी को बोल दो, वो नन्ही को बोल के तुम्हारा ये काम करवा लेगी, और फिर तुम भाई को बोल देना कि ये तेरा वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट है, तो इससे जो चाहे कर, खर्च कर, जो इच्छा कर। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो उससे मिला नहीं, उसकी मिसेज से भी बात कर लेना, और स्वेच्छा भी बात करेगी, मतलब मेरी छोटी बहन आंटी की बेटी, वो भी अपने भाई से बात करेगी, तो उससे भी बात कर लेना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। यही एक एक पैसा को पाने के लिए मेरा बेटा किस हद तक नहीं गया था गुरु जी, पर आज आपने उसकी सारी सोच को ही पलट के रख दिया है। आपका कितना शुक्राना है बाबा, कितना ही शुक्राना करूँ। जो बेटा मेरा एकदम पैसे का पिशाच हो गया था बाबा, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है कि उसका भाई 3,000 वाट अपने ऊपर खर्च कर ले। मतलब वहाँ बस होटल में नहीं रहना चाहिए, खर्चा हो जाएगा, मैंने नन्हे ले लेगा और अपने ऊपर खर्चा करेगा तो मेरे को तसल्ली रहेगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी की ऐसा सोच भी आपने उसको दिया। बस बाबा उसको हम लोग के साथ जोड़ के, भले वो हमें कुछ दे ही ना दे, अब अभी भी मन में के कोने में कहीं को तो कुछ एक डर बैठा रहता है गुरु जी। शायद यही चीज मुझको खा रही है, या कुछ तो हो रहा है बाबा। मैं जानती हूँ आप हैं। 2019 में आया, उस समय भी ऐसा ही तमाशा किया था उसने। सारा सारा मैसेजेस वगैरह सारा प्रूफ था मेरे पास, पर यही फ़ोन, हस्बैंड के फ़ोन चेंज करने के चक्कर में मेरा फ़ोन उनको देना, उनका फ़ोन मेरे लिए नया लेना है, उसके चक्कर में कहीं तो बाबा वो भी गुम हो गया है, मुझे मिलता ही नहीं है। और बाबा ये करंट सिचुएशन जैसा देखती हूँ, मैं तो उसको बोल के रखी बाबू एकदम समझ समझ के खर्च करो, कोई ज़्यादा मुझे पता नहीं कि कितना क्या उसका मुंह खुलेगा, सब बाबा के ऊपर छोड़ दो। बस बाबा आज और एक शुक्राना ये है बाबा कि हमारी शालिनी आंटी ने मुझे मैसेज किया था कि आंटी सचमुच में ही आपका आवाज़ बहुत मतलब खराब आ रहा था, ऐसा लग ही रहा था कि हाँ आपका तबीयत ठीक नहीं है। बोला हाँ आंटी जी ऐसा हो रहा है, पता नहीं ठंड से कि सर्वाइकल है कि क्या है, मुझे नहीं मालूम। नहीं आंटी जी सब ठीक हो जाएगा, अब तो आपका बड़ा बेटा आपके साथ। आप बोला हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फ़ोन आया हुआ था। बोला आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा आंटी जी। बोले बहुत ही अच्छा, बाबा ने तो उसको एकदम काया पलट कर दिया है, क्योंकि बाबा ने इतने दिनों तक उसको अपने पास रख दिया, बहुत अच्छा कर दिया है, तो उसका सोच पलट दिया है आंटी जी। बाबा शालिनी आंटी तो मुझसे बहुत छोटी है, उसने मेरी तबीयत के बारे में उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, कहा आंटी एकदम चिंता मत करना, गुरुजी ने हाथ थाम लिया है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और सब कुछ इजीली हो जाएगा, देख लेना। गुरु जी का काम तो आप जानते ही हो कैसे गुरु जी क्या करते हैं, मिनटों में सब ठीक हो जाता है। तो मैंने भी हामी भरा। हाँ आंटी जी आपका शुक्राना है कि आप मेरे लिए सोच के
मेरे को आपने मैसेज किया, वॉइस कॉल भी किया था बाबा, इसलिए मैंने रिटर्न कॉल किया शालिनी आंटी को। बाबा ये हमारा संगत परिवार, हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत सोचता है। आपका अनंतम शुक्राना है, यहाँ पर हम लोग बेफट मुंहफट होके सब बात को जाहिर कर सकते हैं गुरु जी, और कोई भी डर नहीं रहेगा कि इस चीज का कोई फायदा उठाएगा या कुछ करेगा। बाबा बाबा थोड़ी देर तक मैंने बात भी किया। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बाबा आज मेरी एक मामा ससुर की लड़की ने फ़ोन किया था, जिससे हमारा अच्छा मतलब रेपो है, बातचीत करती है, काफ़ी बड़ी है वो उम्र में, लेकिन मेरे हस्बैंड को भैया ही भैया बोलती है। तो इनका तो अब सुनना ना सुनना एक ही बात हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम भाभी से बात करो अलका दीदी। तो अलका दीदी ने कहा भाभी मैं तो बेंगलोर रहती हूँ अपनी नातिन के लिए, जब वो बड़ी थोड़ी हो जाएगी तो हम फिर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है ना दीदी, आपने बहुत यहाँ पर किया, अब थोड़ा आपका भी टाइम आना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी देर तक बात किया बाबा, फिर का कॉल आने की वजह से गुरुजी मुझे फ़ोन उन्होंने रखा। मैंने कहा दीदी एक बारी होल्ड करिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाभी रखो, मुझे भी काम है। मैंने बोला आइएगा, जाने से पहले एक बार आ जाइएगा। बाबा ने हाँ तो कहा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हमारे बारे में चाहे है, तो वो मेरी सास की भतीजी। बाबा जब भी उन्होंने उनके बच्चों ने मेरे से बहुत प्यार पाया, इज्जत पाया है उन्होंने, और सब कुछ पैसा नहीं कर सकता, ये मुंह का भाषा ही बहुत कुछ करा देता है। इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे ससुर जी के बारे में भी पूछा कि पिताजी कहाँ हैं। बोले मतलब आपके फूफा जी? तो बोला हाँ एकदम सड़ुआ इंसान। बोले जाने दीजिए दीदी, जो होना था हो गया। वो तो आपकी बहन लेके चली गई हैं अपने घर, क्योंकि उनको सारा पैसा वहाँ का चाहिए ना, कांटा का, क्योंकि उन्होंने इलीगली कांटा भी उनके नाम कर दिया है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि मैंने कोई बात नहीं छुपाया, गुल्लू के बारे में भी नहीं बोल दिया कि हाँ मेरे से कांटेक्ट में है, दिल्ली में काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाभी अब बुला लो। हम बोले दीदी वो जैसे वहाँ जम गया है, मेरा बुलाने में असुविधा है दीदी, वो वहीं रहे, आता जाता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, आपने खुद ही कहा कि तुझे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। हाँ मेरे बाबा मिल रहे हैं। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करते हुए आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। बाबा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमित ले, ध्यान लगा ले, छोड़ो जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बीना बॉम्बे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सौम्य आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। दिनांक 30 नवंबर 2025 सन और टाइम 1:40 दोपहर रविवार को कर रही हूँ। अब मैं गुरु जी की पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, बेटी शुक्राना कर, पर मैं गुरु जी आपकी बेटी पता नहीं क्या निगेटिविटी थी कि चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। इसके लिए गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलती है। बेटी अब रोने के दिन गए, तुझे फर्श से अर्श तक ले जाना है। अब तो गुरुजी आपका आशीर्वाद है।
और मुस्कुरा। बेटी, अब रोने के दिन गए। शुक्राना गुरुजी इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटा, अमृत वेला संभाल। अमृत वेले का किया हुआ शुक्राना तुम्हारे घर शांति और समृद्धि लाता है। गुरुजी, आप अपनी बेटी को हिम्मत दो। बाबा, मैं अमृत वेले कर सकूं। बाबा, आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके होते हुए किस बात की चिंता बाबा? आप कहते हैं ना कि आराम नाल सो जा। मैं हूँ ना बाबा, मन को बड़ा सुकून मिलता है। फिर भी इंसान है, कोई ना कोई टेंशन आ ही जाती है बाबा। आपके नाती का पैसे की वजह से काम रुका हुआ है, घर से बाहर गया हुआ है। बाबा, उस पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना और उसे सद्बुद्धि देना बाबा। वो घर आए और माता पिता का कहना माने। बाबा, आप ज़रूर करोगे, यही अरदास है बाबा। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। परिवार की डोर आपके हाथ में सौंप दी है बाबा। आपको जो ठीक लगे बाबा वही करना। हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। बाबा, अब संगत में जितने भी बीमार या असहाय हैं बाबा, सबको मेरे भरा हाथ रखना। सौम्या आंटी और विपन जी के परिवार में खुशियों से भर देना। उनको गुरुजी ने सत्संग शेयर करने के लिए सेवा दी है, उनके भंडारे भरे रखना। जरूर विपिन जी और सौम्या आंटी, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़। गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहे। गुरु जी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं और कई बार कई परेशानियों से बाहर ऐसे निकाल देते हैं कि एहसास ही नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत नू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरु जी का पावन मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग करने में कोई भूल हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 30 नवंबर, रविवार, 2:03 हो रहे हैं दोपहर के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा और क्षमा मेरे गुरुपा कि शुक्राने की सेवा तो आप करवाते हो मेरे गुरुपा, पर मेरी जो गलती है कि मैं ये टाइम पे कर नहीं पा रही मेरे गुरुपा, ये मेरी गलती मेरे गुरुपा। लेकिन ये आपकी रहमत है मेरे गुरुपा कि एनी हाउ एनी वेज आप मुझसे करवा लेते हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, और देखिए कि जब मैं ठीक नहीं कर पाती हूँ ना, तो उस क्या होता है ना, उस दिन गुरुपा जैसे अभी भी एक शुक्राना मैंने रिकॉर्ड किया, लगभग 70% वो रिकॉर्ड हो चुका था। वो अपने आप वो रुक जाता है, रिकॉर्डिंग रुक जाती है, उसके बाद वो अपने आप वो डिलीट हो जाता है। मतलब कृपा चाहते कि मैं फिर से रिकॉर्डिंग करूं और जो मैंने बोला उसको शॉर्ट में करके और भी बातें मैं बोलूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपकी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक चीज मैंने देखा संग जी कि कभी नहीं अधिकांश लगभग कि जब रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं, सत्संग स्पेशली सत्संग करने बैठे या पाठ करने बैठो, तो कुछ स्पेसिफिक पर्सन का ना
उस टाइम पे इतना कॉल आता है, मतलब कि हाँ, वो होती है कि ये चीज़ जो भी है पता नहीं। तो मेरे गुरुपा जाने अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा, तो बाद में ऐसा करना पड़ता है कि या तो नेट ऑफ करो तो भी कॉल आएगी, तो मुझे ये क्या करना पड़ता है, फ्लाइट मोड पे डालना पड़ता है, ताकि गुरुपा चाहते हैं अब तो आराम से निश्चिंत होके कर। अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। संग जी, आज गुरुपा ने एक बड़ी प्यारी बात समझाई संग जी। बताते तो हर दिन है संग जी, लेकिन वो दिमाग में जो होती है ना भाव, गुरुपा ऑलरेडी कहते हैं भगवान को सिर्फ भक्त का, अपने बच्चों का भाव चाहिए संग जी। वो सिर्फ भाव देखते, कहते हैं ना भगवान से भाव के भूखे हैं, उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए संग जी। और हर मुझे लगता है पूरे जीवन भर, मुझे लगता है ना संग जी, मुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता, बस समझ लो कि जो भी गुरुपा बुलवाए, अगर गलती बोल दूं तो मेरी गलती है, मेरे गुरुपा माफ कीजिएगा। भाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि हम किस भाव से क्या कर रहे हैं, हम किसकी बातों को किस भाव से सुन रहे हैं। हमारे अंदर का भाव बहुत मायने रखता है सच में। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आपने ये मुझे सिखाया, समझाया संग जी। कहते ना संग जी कि हमारे अंदर का भाव अगर सही है ना, कि मतलब अगर हम खुश हैं, भाव मतलब हमारे अंदर की खुशी, प्रसन्नता, किसी के बारे में अच्छा सोचना, बुरा सोचना, कुछ भी हमारे अपने परिस्थिति के हिसाब से हम जो भी कर रहे हैं वही भाव। अब भाव संग जी, जैसे कभी अगर हम प्रसन्न चित्त हैं तो हमारे सामने कुछ भी हो रहा है ना, हम मजाक में सारी बात को ले लेते हैं, सारी बात को मजाक में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भाव प्रसन्न चित्त वाला भाव है, हम प्रसन्न भाव में हैं संग जी। हमारे इमोशंस अगर सॉरी संग जी, और वही हमारा मन दुखी होता है ना, तो कोई अगर हमें अच्छी बात भी बोले तो हमें कभी कभी वो बात हमें दुखी कर देता है। इन द सेंस है कि सारा घूम फिर करके बात किस पे आती संग जी, हमारा भाव। जैसे एक चीज सच बात है कि हम अपने मम्मी पापा भाई बहन, हाँ, जो हमारे बहुत ही करीबी हैं संग जी, जिनके साथ हमने बचपन से, जिनके लिए हमारे मन का भाव अच्छा है, हमारे मन का, सामने वाले का नहीं संग जी, हमारे मन का, तो वो अगर हमें डांटे, मारे, पीट दे या गुस्सा भी हो जाए, या कभी हमें उनकी किसी बात से अगर हम दुख भी पहुंच जाता है ना, थोड़े देर के लिए लगता है, फिर क्योंकि हमारे मन का भाव क्या है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सखा है। क्योंकि हमारा मन का भाव ये है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। हमारे मन में भाव क्या संग जी, प्रेम का भाव है। जहां हमारा भाव प्रेम पूर्ण होता है ना संग जी, तो कहते हैं ना कि सामने वाले की बड़ी से बड़ी गलतियां हम माफ कर देते हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें ना उनकी इंटेंशंस समझ में आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, वो मेरा बुरा थोड़ी ना सोचता होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए सोच रहा होगा। अगर उसने मुझे कभी डांटा भी, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमारा प्रेमपूर्ण भाव है हमारा, तो वो कुछ भी करेंगे ना, थोड़ी देर के लगेगा, फिर हमें लगेगा कि नहीं, जरूर मतलब कुछ अच्छे के लिए ही बोलते होंगे या डांटते होंगे, समझा रहे होंगे, हमारे मन का भाव समझिए ऐसा। लेकिन इंस्टेड ऑफ लव, जैसे हमारे मन में है, और इंस्टेड ऑफ देम, अगर कोई और ऐसा हो जिनके लिए हमारे मन का भाव बस नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल अगर है, ये नहीं है कि हाँ बहुत, तो किसी और की बात कही हुई छोटी छोटी बात हमें बहुत ना चुभ जाती है संग जी। हमें उस टाइम पे क्या हम सोचते हैं, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। समझिए वहां पे किस चीज की कमी है, हमारे प्रेमपूर्ण भाव की कमी होती है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप बहुत कुछ सिखाते हो मेरे गुरुपा, कि भाव का होना, कहते ना कि गुरुपा कहते ना संग जी कि अगर किसी रिश्ता है, अगर तुमने किसी से रिश्ता जोड़ा है तो पूरे भाव के साथ जोड़ो। अपने उस रिश्ते को निभाने के लिए भाव चाहिए हमारे।
तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है संगत जी। हम अपने जो हमारे जो मन के भाव हैं, मतलब कभी हम खुश हैं तो सामने वाले की बातें चाहे वो कुछ भी है तो हम उस चीज़ को प्रसन्नता में हम प्रसन्न हो जाते हैं, हंसी मजाक में ले लेते हैं। हम दुखी हैं तो किसी की छोटी कही हुई छोटी सी बात जो कि हमारे लिए उस टाइम पे हमें खुश करने के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बात भी हमें दुखी कर जाती है। कारण क्या? हमारा मन का भाव दुखी है। हमारा भाव में क्या है? हम दुखीपूर्ण हमारा भाव है। कहते हैं कभी कभी ये चीजें होती हैं संगत जी, या कभी गुस्से में है, हमारा भाव क्या है, कभी कभी गुस्सा पूर्ण भाव है, तो सामने वाला कुछ भी करे तो भाई हमें लगा कि और गुस्सा हम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें तो ना हम अपने मन के भाव को तो बड़ा जल्दी समझ लेते हैं कि नहीं, उसी हिसाब से हम सब कुछ को हम वो करते हैं, है ना, उस चीज क्या करते हैं गुरुपा, जस्ट लाइक टैकल, मतलब जो भी हम समझते हैं बात को। लेकिन जब सामने वाले के भाव के बारे में आना चाहिए संगत जी, तो हम उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं कि इसका भाव, जैसे कि हमें किसी की बात बुरी लग जाती है मान लो, तो बुरी लग गई तो हमें ये भी तो हम सोच सकते हैं ना उस टाइम पे कि नहीं, कि जरूरी नहीं है, क्योंकि अब देखो हमारे मन के भाव के हिसाब से ही हमें कभी कभी बात भी अच्छी या बुरी लग सकती है। तो उस टाइम पे अगर हम नॉर्मल हम रहते हैं संगत जी, हमारा भाव शांतिपूर्ण होगा ना, जब हम शांतिपूर्ण वाले भाव में होंगे ना संगत जी, तो हम हर एक बात को, वो अच्छी है बुरी है किसी भी चीज, किसी भी तरीके की हो सकती है, तो हम सामने वाले के भाव को ना संगत जी बड़े सोच समझ कर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन का भाव क्या है? वो शांतिपूर्ण है। हर एक चीज को, मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम पे गुरुपा बड़े प्यार से हमें चीजों को बता देते हैं। तो एक चीज है कि सब तरीके का भाव अच्छा रखने के लिए ना, अब देखिए लास्ट में क्या आ गया संगत जी, हमारे मन को शांत चित्त होना चाहिए, हमारे मन का भाव शांत होना चाहिए। जब हमारा मन विचलित नहीं होगा ना संगत जी, तो रियलिटी जो होती है ना, मेन जो, मतलब कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज का जो असलियत है वो हम समझ पाएंगे। अगर हमारे मन में उधेड़ बुन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो कभी कभी हमें समझ ही में नहीं आता है कि हम ठीक है, कभी अच्छा लगा तो हंस दिए, कभी ये बात बुरी लग गई, कभी हम गुस्सा हो गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो हमें अपने मन के भाव को सही रखने के लिए हमें अपनी अपनी इस चंचल मन को शांत करना होगा, शांत सरोवर जैसा, बिल्कुल। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि अ, मुझे, मैं ना अभी बेडरूम में मैं अभी सत्संग कर रही थी, बाबू को सुला रही थी, तब तक में इधर बहुत हल्ला हुआ, तो गुरुपा कहीं ना कहीं था। गुरुपा ने कहा, जैसे मन में जो भाव आता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो और फिर सत्संग वहाँ पे रिकॉर्ड करना। तो फाइनली मुझे यहाँ पे आके ही बैठना पड़ा। और ये शांतिपूर्ण वाली जो भाव है ना, ये गुरुपा ने बताया कि सबसे बड़ा भाव शांति की होती है संगत जी। और हमें भगवान क्या प्रदान करते हैं? शांति। जब हम सबसे, और ना संगत जी, जब हम गुरुपा के, जितने ही गुरुपा हमारे करीब महसूस हो, हम कि हम गुरुपा मेरे नजदीक है, मैं गुरुपा के नजदीक हूँ, तो उस समय हमें क्या मिलती है? सबसे बड़ी चीज, हमारे मन का भाव क्या उत्पन्न होता है? असीम शांति। हमारे अंदर वो असीम शांति, और वो भी कब मिलती है संगत जी? जब हम अपनी कृपा को बहुत प्रेम से याद करते हैं ना, कहते हैं कि दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, वो हमें, वो कहते हैं ना, सच्चा सुख किस चीज में है? शांति में। कहते हैं ना, मंदिर जाते तो हमें शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है। हम सारे दीन दुनिया को भूल करके बस हम अपने भगवान में लीन हो जाते हैं, और जब हम भगवान में लीन होते हैं तो हमें शांति मिलती है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो हमें सब कुछ भाव के साथ, अच्छे भाव के साथ, शांतिपूर्ण भाव के साथ, जब हम एक एक चीज को संगत जी, बस सच है, कहते हैं ना कि कभी कभी अगर हमारा मन अशांत है तो हम पूरी की पूरी किताब पढ़ जाएं,
दिमाग में समझ कितना आता है, 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं समझ में आता। रियली में कभी कभी जब हमारा मन अशांत है और हम कोई पाठ भी कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो मैंने स्वयं क्या पढ़ा है खत्म हो गया, और पढ़ा क्या कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ याद ही, क्योंकि हमारा मन अशांत है। पढ़ रहा है, दिमाग तो पढ़ रहा है, पर मन में नहीं आ रहा है संगत जी, क्योंकि हमारा भाव अशांत है, हमारा मन विचलित है। इसीलिए मन की शांति के लिए हमारे गुरुपा का ध्यान, स्मरण, ये सब बहुत जरूरी है संगत जी। कहते हैं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो। और जैसे ही हम चिंता में डूबने लगते हैं, मतलब जरा सी क्षणिक भर भी अगर किसी बात की अगर मन में आ जाती है ना, किसी भी बात को, हमारा ध्यान भटक जाता है संगत जी। क्षण भंगुर है हमारा दिमाग, हमारा जो मन है ना, बड़ा क्षण भंगुर है। दिमाग नहीं, मन, हमारा जो मन है इतना क्षण भंगुर है कि तुरंत तुरंत में बहुत ही वो होता है, तुरंत मतलब वो। इसलिए मन को शांत चित करने के लिए हमेशा गुरुपा का जाप करो, सिमरन करो, उनको ध्याओ, चिंतन करो। मेरे गुरुपा हम सबके लिए है, मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो रही हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें ना गुरुपा मुझे स्वयं सिखाने के लिए ही बुलवा देते हैं संगत जी। मेरे खुद के सत्संग में बुलवा के गुरुपा मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि मेरा मन भी बहुत अशांत होता है संगत जी। मुझे स्वयं मन को शांत चित्त करने की आवश्यकता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे ये सीख देने के लिए अनंतम शुक्राना। और बहुत से जवाब गुरुपा ने मुझे अमृत वेला सत्संग के थ्रू दिया संगत जी, बहुत से। और कल गुरुपा ने पाठ की सेवा दी थी संगत जी। मैं बहुत डर रही थी संगत जी, वाकई में, क्योंकि कभी कभी डरने इन द सेंस है कि मैं जो पाठ की सेवा मुझे मिली है तो मैं उसको सफलतापूर्वक अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। से घर पे कुछ हल्ला नहीं होना, किसी भी तरीके का नॉइस ना होना, और मैं अपने, और सबसे बड़ी बात संगत जी, पूरे भावपूर्ण भाव के साथ उस चीज को पढ़ पाना। क्योंकि ना हमारा दिमाग कभी अगर थोड़ी देर के लिए भी भटक जाता है ना, अरे इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये वो, अगर घर में भी अगर वो होता है ना, जैसे मान लो कुछ है, तो हमारा ध्यान जैसे ही हटता है ना संगत जी, तो फिर हम भावपूर्ण हो करके ना पाठ भी नहीं कर पाते। उस चीज को जो मेन जो उससे हमें कृपा देना क्या चाहते हैं, पाठ करवा करके कृपा हमें क्या देना चाहते हैं, वो चीज हमें नहीं मिलती संगत जी। हम पाठ तो कर लेते हैं, पर हमें कृपा हमें क्या देना चाह रहे थे, उस पाठ की अगर सेवा मिली है ना, तो स्पेशली संगत जी, हमारे संगत में बैठ के जब हम पाठ करते हैं ना, और वो हमें सेवा मिल रही है उस दिन, जिस भी दिन, जिस पल, जिस क्षण जो भी सेवा मिली है हमें, वो गुरुपा की कृपा से ही मिलती। और एक एक पाठ का एक एक शब्द, एक एक अक्षर संगत जी हमारे लिए बहुत, कहते हैं ना, अमृत तुल्य होता है। जैसे कल जब मुझसे गुरुपा ने पाठ की सेवा ली संगत जी, पाठ उन्होंने, क्योंकि गुरुपा से मैंने अरदास करी थी कि गुरुपा ये पाठ आप ही कराओगे, और तो पता नहीं गलती ना हो जाए, बहुत तरीके की बात होती है ना संगत जी, तो गलती ना हो जाए। और संगत जी गुरुपा ने करवाया, बच्चा समझ गया कि हाँ, बच्चे को शांत रखा घर पे, और बाकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छे से, जो ऐसे ही करके रही है क्या करती वो, मतलब इतना जब पाठ खत्म हो गया तो मेरे घर के फैमिली मेम्बर, एक तो बाहर ही थे, बाकी जो लोग थे, बहुत मतलब प्यार से मतलब पूछा गया मुझसे, पाठ खत्म हो गया, फिर उन्होंने जो बाकी जैसे होता है ना कि हाँ करके, हाँ ये काम वो काम। तो ये कृपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, पहले ऐसा नहीं था संगत जी। जब कल कृपा ने मुझे पाठ करवाए, इससे पहले भी एक बार पाठ की सेवा दी थी संगत जी, उस दिन भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था, जैसे मेरे घूस बम्स आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर से ना बीमारियां दूर हो रही हैं, छू मंतर हो रही हैं, मेरे सारे दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट जितने हैं
सारे मतलब निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कल भी मेरे सर मुझे ऐसा लगा, तो ये कृपा की कृपा दृष्टि है संग जी, कि कैसे कृपा ने मुझसे वो पाठ कराया, मेरे कष्ट दूर किए। सरव रोखा औखद नाम। और रियली में संग जी, कल मैं ना कंटिन्यू मैं जब से थोड़ी सी तबीयत ठीक, बहुत अच्छी, मेरी तबीयत में कुछ भी नहीं हुआ है मुझे मुझे मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ कृपा की कृपा से संग जी। तो क्या होता है ना, मैं कंटिन्यू जैसे बोला, जैसे अभी जैसे गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं बिना मुझे खांसी आ जाएगी या कभी गले में प्रॉब्लम या कुछ ऐसा करके संग जी, उतने जो देर जब तक पाठ हुआ, गुरपा ने मुझे एक बार भी, बार-बार मुझे खाँसी आ रही थी, पर मैंने गुरपा से अरदास किया कि गुरपा देख लीजिए, मतलब मुझे, मतलब मैं ये चीज़ आप करवाओगे मेरे गुरपा। बीच में मैं आराम से जी संगत जी, जितनी देर पाठ हुआ, मुझे टाइमिंग तो याद नहीं है, लेकिन गुरपा ने संगत जी, मुझे एक बार भी मेरे गले में एक खराश तक नहीं होनी थी। मुझे लग रहा था कि बार-बार अब ऐसे करके खाँसी आने वाली, ऐसे करके, लेकिन कुछ होने नहीं दिया संगत जी। अब देखो, कल गुरपा ने मुझे जो पाठ की सेवा दी ना, जैसे बच्चा इधर वो अपना मोबाइल चला रहा था उधर, तो छोटा-सा घर है ना संग जी, तो मुझे ना थोड़ा स्पेस ढूँढना पड़ता है अगर मंत्र जाप भी करना। तो गुरपा ने संग जी मुझे जैसे ना कि किचन में बोला तू यहाँ पे बैठ। अब किचन में बैठा के संग जी देखिए कैसे किचन को ब्लेस किया। सारे खाना को ब्लेस कर दिया, सब कुछ पूरे घर को ब्लेस किया संग जी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा खाए तन वैसा बनेगा मन, है ना? और तो संगत जी, तो उसमें किचन में बैठ के कोई हम पाठ करते हैं, कृपा ने मुझसे कल किचन में बैठा के पाठ करवाया और किस तरीके से हमें ब्लेस किया कि खाना जो बनेगा तो ब्लेस किया हुआ खाना बनेगा, खा कर के हम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो कृपा की कृपा दृष्टि, और कहीं न कहीं मैंने सोचा मैं कहाँ बैठूँ? कृपा का एक बार आया, किचन में बैठ जा। मैंने सोचा कि कैसे बैठूँ? मैंने सोचा कि मैं ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ, पर मैं इधर-उधर गई, फिर फाइनली गुरबा ने मुझे किचन में ही बैठाया। तो देखिए ये गुरबा की कृपा दृष्टि है कि कब, कहाँ, किसको, किस चीज़ को कृपा ब्लेस करा देंगे पता नहीं। ये कृपा की शुक्राना है, अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। और संग जी आज जैसे अमृत वेला सत्संग के थ्रू बहुत से जवाब दिए कि कैसे-कैसे कृपा ने मेरे एक फैमिली मेंबर को बचा के रखा है। इसलिए उसको उस जगह से दूर करके रखा है कि अगर वो वहाँ होता तो बहुत बड़े शायद इसके हाथों से कुछ पाप हो जाता। गुरपा ने पाप से बचाने के लिए गुरपा ने स्थान परिवर्तन करा दिया। बस सच्चे संगत जी, अगर अचानक से कुछ स्थान परिवर्तन हो जाए ना, समझ लेना हमारे बहुत बड़े कष्ट कट रहे हैं, या कोई हमें पाप होने से गुरपा हमें बचा रहे हैं। हमारे हाथों पाप। संगत जी, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया था। वो कहाँ से मुझे मैसेज मिला था मुझे याद नहीं संगत जी, पर फिर भी मैं ये सारी संगत परिवार के साथ में साझा करना चाहूँगी कि न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी है, खुश रह, बताऊँ तुझे मैं कौन हूँ, तैयार रह आमने-सामने के लिए, आखिरी बाधा भी दूर हुई, आज तुझे वो दृष्टि मिलेगी जिससे तुझे साफ-साफ दिखेगा, परम शक्ति का स्वागत नहीं करेगी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, और गुरुपा देखिए हमारी ना सारी बात सुनते हैं संगत जी। मैं ये वाला शुक्राना तो कर ही नहीं पाई थी कि मुझे मेरे पास यूटेंसिल्स थे, मतलब क्या बोलते हैं गुरुपा, बर्तन के सेट संगत जी, पर शादी में जो था मेरा में मुझे मिला था, तो कहीं न कहीं कुछ था जो कि गुरुपा ने वो दूसरे को दिलवा दिया था। मैंने वो दूसरे को दे दिया था। अब पति ने किसको ले जाके दिया पता नहीं, पर वो घर पे फ़िलहाल नहीं है। तो फिर ना मुझे बहुत ही था कि मैं कुछ डिनर सेट लेने के लिए मेरा मन था। जो जैसा डिनर सेट मुझे लेने की इच्छा हो रही थी, अ, तो मैं देखती थी, पर मैं फिर लेती नहीं थी संगत जी। मैंने सब कुछ ना गुरुपा पे छोड़ दिया हुआ है। मैं क्या छोड़ूँगी संगत जी, गुरुपा ने ही ऐसा इतना कर रखे हैं संगत जी कि कुछ करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। संगत जी, तो गुरुपा ने सेम जो डिनर सेट मुझे पसंद था, मैं चाहती थी कि मैं लूँ,
तो सेम टू सेम डिनर सेट मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया संगत जी, एज अ गिफ्ट ब्लेस किया संगत जी गुरुपा ने। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा उस जगह से संगत जी जहाँ पे कि मैं एक बार गई थी, और जैसे मैंने बोला था ना, जैसे लग रहा था कि मेरे गुरुपा ने बोला कि मैं तुझे एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाला हूँ। उस रूप में भी गुरुजी ने मुझे ऐसा ही बोला था। और संगत जी देखो, जो हमारा डिनर सेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य होता है ना, हमें हमें हम खाना क्यों खाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी मिले उसके लिए हम खाना खाते हैं ना। और खाते किस में, बर्तन में। तो वो जो कहते हैं ना वो भी बड़े और ये चीज़ मुझे मुझे इतना पता है कि वो मेरे गुरुपा ने मुझे गिफ्ट दिया संगत जी। इस तरीके से उन्होंने मुझे अ, हमारे हेल्थ को ब्लेस किया संगत जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बोल दो संगत जी। किचन में कल बैठा के मुझे सर्वरोग का औखत नाम का पाठ करवाया, और डिनर सेट भी मुझे ब्लेस किया, ताकि जो भी खाना खाऊं मैं उनके ब्लेस्ड डिनर सेट में खाऊं, हम सब खाएं। तो अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा का अनंतम सुखाना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।